الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مدینہ عربک بک 1 کا لیسن 4 پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کل ہم لوگ پڑھے تھے حروف جار کے تعلق سے، جو کہ 17 ہیں، اور ان میں سے ہم لوگ لیسن 4 میں پڑھے ہیں دو، اور ان میں سے ایک ہے فی اور ایک ہے علا۔ فی کا معنی ہوتا ہے ان، یعنی کہ میں، اور علا کا معنی ہوتا ہے آن، یعنی کہ پر یا پھر اوپر۔ تو یہ حروف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والا کلمہ آنکھ بند کر کے کہہ دینا ہے کہ وہ اسم ہے، کیونکہ یہ حروف جار اسم کی علامت ہیں، اور جس اسم پر یہ آئیں گے یا جس اسم کے پہلے یہ آئیں گے اس کے آخر میں زیر دے دیں گے۔ بس ان کا قاعدہ اتنا سا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں۔ پھر معنی تو ہر ایک کا الگ الگ ہے، وہ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر جیسے تھا البیتو، البیتو کا معنی تھا گھر، اور فی البیت گھر میں۔ اب اس کو ہم ترکیب، یعنی جو یہاں پر ملایا گیا ہے، اس کا کیا نام دیں گے؟ تو فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور البیت یہ مجرور ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ یہی کہیں گے، حرف جر، فی حرف جر اور البیت مجرور۔ یہاں پر جو علی المکتب ہے، تو علی حرف جر، المکتب مجرور۔ پھر المسجد ہے تو یہ جار مجرور نہیں ہے، یہ سنگل ہے، اس لیے ہم یہاں پر جار مجرور نہیں کہیں گے، بلکہ فی حرف جر اور یہاں پر المسجد مجرور۔ یہاں پر علی حرف جر اور السریر مجرور۔ تو یہ ایک چیز ہوئی حروف جار کے تعلق سے جو ہم پڑھے تھے۔ دوسری چیز جو ہم پڑھے تھے وہ تھا کوشچن ورڈ آئینہ، اور اس کا جو تعلق ہوگا وہ جگہ سے ہوگا، یعنی فلاں بندہ کہاں پر ہے، یا فلاں چیز کہاں پر ہے، کہاں پر مطلب کس جگہ ہے، تو اس کا تعلق جگہ سے ہوگا۔ اور یہ کلمہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی ہم کسی انسان کے تعلق سے سوال کریں گے تو بھی آئینہ کا استعمال کریں گے، اور اگر کسی ایسی چیز کے تعلق سے سوال کرتے ہیں جو عاقل نہیں ہے بلکہ چیز ہے وہ، تو وہاں پر بھی ہم آئینہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ کو کہنا ہو کہ میری موبائل کہاں ہے، تو آئینہ جوالی کہیں گے، یا صرف یوں کہنا ہو کہ موبائل کہاں ہے، تو آئین الجوال ہو کہیں گے آپ، ہے نا؟ الجوال جو ہے یہ موبائل کو کہتے ہیں۔ تو یہ غیر عاقل ہے تو اس کے لیے بھی آئینہ کا لفظ آیا ہے۔ عاقل جو ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ایک جملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی سے پوچھتے ہیں آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ ہوا فی السماء، یعنی اللہ آسمان میں۔ وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے کہ یہ ایمان والی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تو آئینہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے ہم عربی میں جب کسی بھی عاقل کے لیے سوال کریں گے کہ کہاں ہے، تو آئینہ کا ہی استعمال کریں گے۔ دوسری چیز جو ہم پڑھے تھے وہ تھے اسمی ضمیر، اور یہ ضمیریں 14 ہوتی ہیں، جس میں سے کل کے لیسن میں ہم 2 پڑھے تھے۔ ضمیریں کتنی ہوتی ہیں؟ کل 14 ہوتی ہیں، جن میں سے کل 2 ہم لوگ پڑھے تھے۔ ایک ضمیر تھی ہوا اور ایک ضمیر تھی ہیا۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے، واحد کا مطلب ایک، اور مذکر کا مطلب میسکولین کے لیے ہے، اور غائب کا مطلب کہ اس سے جو مراد ہوگا وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور بندہ خود اپنے بارے میں بھی ہوا کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر 2 لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو بھی ہوا کا استعمال نہیں ہوگا۔ 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو بھی ہوا کا استعمال نہیں ہوگا۔ ہوا استعمال صرف ایک بندے کے لیے کریں گے، اور وہ بندہ مذکر ہو اور غائب ہو۔ ایسی ہی ہے تو یہ مؤنث کے لیے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ہوا مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، باقی معنی دونوں کا سیم ہے، اور دونوں کے قاعدے بھی سیم ہیں۔ یہ بھی واحد مؤنث غائب کے لیے، اور یہ واحد مذکر حاضر کے لیے۔ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ فرق نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کل کے لیسن میں ہم پڑھے تھے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے تمارین۔ تمارین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائزز، یعنی ایکسرسائز۔
मश्क जिसको कहते हैं, तो ये क्या है। पहली तमरीन में क्या करना है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियते, नीचे कुछ सवालात आ रहे हैं, उन सवालात का जवाब देना है। और जवाब आप कुछ भी दे सकते हैं, बस ग्रामर के हिसाब से सही होना चाहिए। जैसे सवाल है ऐनल किताबो, किताब कहाँ है। तो अब आपको यहाँ पर दो तरीके से जवाब आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका अपनाएंगे वो दूसरा वाला तरीका होगा। पहला तरीका ये है कि अल किताबो, लफ्ज़ किताब जिक्र करें, अल किताबो, किताब कहाँ है। अल किताबो अलल मकतबे, किताब टेबल के ऊपर है। ये जवाब अगर आप देते हैं तो भी सही है। और अगर किताब का जिक्र ना करते हुए किताब की जगह पे आप ज़मीर को यूज़ करें, जैसे ये किताब लफ्ज़ क्या है, वाहिद है, और मुज़क्कर है, गायब है, तो इसके लिए आप हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ अलल मकतबे, वो टेबल के ऊपर है, तो भी जवाब सही होगा। और यही दूसरा कायदा हम पढ़ेंगे। अयना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि हुआ फिल गुरफते, वो कमरे में है। यहाँ पर मोहम्मदुन फिल गुरफते भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हुआ फिल गुरफते कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये वाली तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हुआ और हिया का इस्तेमाल करना है। अभी इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोग हल कर ले जाएंगे ना। ये तमरीन समझ में आ गई है ना, इसमें क्या करना है। जी शेख। जी हाँ। दूसरी तमरीन क्या है, अभी मैं सरसरी पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाए तब तक, फिर इसके ताल्लुक से हम मश्क करेंगे। इसमें क्या करना है, इकरा वक्तुब, नीचे आने वाले कलिमात को पढ़ना है और लिखना है। तो अभी की क्लास में लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, जो कलिमात आ रहे हैं उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगाते हुए। एराब जानते हैं ना किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, और वो हमेशा कलेमे के आखिरी हर्फ पर लगता है। तो यहाँ पर जितने भी कलेमे हैं उनका जो भी आखिरी हर्फ है उस हर्फ पर क्या एराब होगा, यानी ज़बर आएगी कि ज़ेर आएगी कि पेश आएगी, क्या आएगी, वो हमको लगाना है। तो दो मिसालें समझ लेते हैं। पहली मिसाल, अल मदरसतो, अल मदरसतो, इसका माना है मदरसा या फिर स्कूल, दोनों कह सकते हैं। तो अल मदरसतो में जो अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये एराब पर कोई अमल नहीं करता है। इसका काम क्या है, दो काम है। एक तो जो तनवीन होती है उसको ख़त्म करता है, दो पेश को सिंगल पेश कर देता है। दूसरा काम क्या है कि ये नकेरा से मारिफा कर देता है, यानी इनडेफिनिट से डेफिनिट कर देता है। इसके अलावा और कोई काम इसका नहीं है, एराब पर ये असर नहीं करेगा। तो इससे पहले, यानी अलिफ लाम या ये जो अलिफ लाम वाला कलेमा है, उससे पहले हम देखेंगे कि कोई कलेमा दूसरा ऐसा है कि नहीं है जो इसके एराब पर असर कर सकता हो। तो ऐसे कलिमात में से हमने सिर्फ हरूफ जार पढ़े हैं, तो हरूफ जार में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये आमिल से खाली है। तो इसम जब आमिल से खाली हो तो उसकी असली हालत क्या होती है, रफा होती है। इसम की असली हालत क्या है, रफा, यानी कि पेश होती है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अल मदरसा। तो तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो गोलता है ना, ये गोलता नजर आ रही है ना, जी उस्ताद। इससे पहले जो हर्फ होता है, गोलता से पहले जो हर्फ होता है उसके ऊपर हमेशा जबर आती है। ये कायदा है अरबी का। जो गोलता है, उस गोलता से पहले जो हर्फ शेख होता है जैसे सीन उसके है यहाँ ऊपर पे। हमेशा जबर आएगी। जैसे अल मदरसतों में गोलता से पहले वाला हर्फ कौन है, सीन। सीन। तो यहाँ पर सीन है, इसके अलावा जो भी हो सब पे क्या आएगी, जबर। 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 तो इस जबर को हम एराब नहीं कहेंगे, ये हरकत है। ये क्या है, हरकत। 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 हरकत भी जबर जेर पेश को कहते हैं। तो यहाँ पर हरकत इसलिए कहेंगे क्योंकि एराब आखिरी हर्फ पर होता है। आखिरी हर्फ से पहले जो हरूफ होते हैं उनके ऊपर जो हरकतें होती है उसको हम एराब नहीं नहीं कहते। कहेंगे। और यहाँ पर पहले तनवीन थी, मदरसातुन दो पेश था, जब अलिफ लाम आया तो वो दो पेश हट गए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फिल मदरसते, फिल मदरसा ते, ता के नीचे कसरा पढ़ेंगे। शेख और शेख चीज शेख चीज पूछना था। ता के हेलो। नीचे कस जी भाई। शेख शेख जहाँ भी शेख फील आ रहा है मुझे, तो वहाँ आखिरी वर्ड हमेशा
तो यहाँ पर ता है तो उसमें मुझे जेर आएगा, कसरा आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्यों शेख? जहाँ ये जो फी है ना, ये हरफे जर है, इसके ताल्लुक से कल कल क्लास में थे आप। हाँ, जी शेख, थोड़ा सा मैं मतलब उस समय भी बात पूछ मतलब चले गया था, मतलब मैं जी जी हॉस्टल अच्छा में था अच्छा। थोड़ा सा। हाँ ये जो है ना, ये हरूफे जार हैं, फी है, जी अला है। अभी तक जी, हम दो आला पढ़े जी हैं, कितने पढ़े जी। हैं? तो दो, फी और जी और आला, आला। अला। तो ये दोनों हरूफे जर हैं, ये दोनों जी हरूफ हैं। जी और हरूफ कौन से हरूफ हैं? जर। जर का मतलब होता है जेर देने वाले। जी, प्रोनाउन जो तो ये इसम से पहले आएंगे, हमेशा किससे पहले आएंगे? इसमें से पहले आते जी। इसम से पहले आएंगे। और जिस इसम से पहले आएंगे उस इसम के आखिर में जेर दे देंगे। जी जी। और इसके जी जो, शेख। जी हाँ, और ये जो कुल हैं 17 हैं, इनमें से अभी हम सिर्फ दो पढ़े हैं ना। दो पढ़े जी। फी का माना और फिर इन होता है और अल्लाह का माना कौन ऊपर। होता है। जी ऊपर। बस इसके अलावा और कोई इसका खास कायदा नहीं है। शेख, जहाँ अला आएगा वहां भी जो है जेर आएगा ना, जी आखिरी हाँ, वर्ड वहां जो पर है भी जेर मतलब आएगा। इसमें के। जी शेख, वही तो कंफ्यूजन था, जी जी हाँ, वहां पर भी जेर आएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिल मदरसते, है ना। और फिर यहाँ पर एक एक कलिमा है अल मकतबो। तो इससे पहले ना फी है ना अला है, कुछ भी नहीं है ना। तो हम पेश पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? पेश। ये जो आम हालत जो। मकतबो। हाँ, जो आम हालत है वही। लेकिन यहाँ पर हम पेश नहीं पढ़ सकते। जैसे कोई अगर कहता है अलल मकतबो, तो गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि अला जिस कलेमे से पहले आता है उस कलेमे के आखिर में जेर दे देता है। तो यहाँ पर हमको जेर पढ़ना होगा। अलल मकतबे, अलल मकतबे। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी शेख, इंशाल्लाह। चलिए, नीचे जुमले कुछ दिए हुए हैं, वो पूरे जुमले तीन तीन दो दो कलिमात से मिलकर एक सेंटेंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो एराब के सिलसिले में बात कर लेते हैं। तो अत्तालिबो है, फी है, अलजामिया है, ये तीन कलिमात इसके अंदर हैं। सबसे पहले अत्तालिबो। तो अत्तालिबो से पहले फी भी नहीं है, अला भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा? पेश तालिबू। पेश है ना, अत्तालिबो पेश। और फिर ये फी, तो इसका एराब जो है वही रहेगा, क्योंकि इसका एराब कभी चेंज नहीं होता है। तो ये फी है। जी। फिर अल जामियातो था, यहाँ पर फी अल जामियाती। जामियातो से पहले आया, तो अब इसका एराब चेंज हो गया। तो क्या जामियाती। पढ़ेंगे यहाँ पर? जामियाती। फिल जामियाती। अब इसका माना क्या होगा कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वाहिद है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है, यानी तालिब इल्म जामिया में है, ये इसका जी। माना होगा। तो यहाँ पर हमें खबर दी जा रही है स्टूडेंट के ताल्लुक से कि वो कहाँ है, जामिया में है। तो जो पहला इस जुमले का, यानी इस सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो इसमें है कि नहीं है? जी। इसमें है ना। जी। हाँ, तो अब ये जुमला इसमिया हुआ, इसका नाम क्या देंगे हम? जुमला इस्मिया। जुमला इसमिया। जुमला इसमिया का पहला जुज मुब्तदा होता है, पहला पार्ट जो होता है उसको क्या कहेंगे? मुब्तदा। हाँ, तो अत्तालिबु क्या है? मुब्तदा। मुब्तदा। और फी हरफे जार अल जामियात मजरूर, जार मजरूर मिलकर के क्या बने? खबर। हाँ, खबर खबर। बनी। तो ये तरकीब आप लोगों को याद रहेगी। जी। हाँ। तो जिसके बारे में खबर दी जाए उसको मुब्तदा कहेंगे, और जो खबर दी जाए उसको खबर कहेंगे, जार मजरूर हाँ, खबर। है ना। जिसके बारे में, जैसे यहाँ पर किसके बारे में खबर दी जा रही है? तालिब तालिब। और तालिब तालिब। तो स्टूडेंट जो तालिब है। क्या हुआ? खबर मुब्तदा। है। मुब्तदा। मुब्तदा हुआ, क्या हुआ? खबर है। मुब्तदा मुब्तदा। मुब्तदा। और तालिब के बारे में जो खबर दी जा रही है, जैसे फिल जामियत, ये खबर है। खबर है। तो ये जी। खबर कहलाएगी ना। दूसरा जुमला आप मतलब कि देख जिसके सकते हैं, बारे में अर पूछा जा रहा है रजुलो। मुब्तदा है। जी हाँ, बताएं। जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो मुब्तदा है मतलब से, है ना? जी जी हाँ भाई। जी जल्द। यहाँ पर क्या है, अर रजुलो फिल मस्जिद है, खबर किसके बारे में दी जा रही है, किसके बारे में बोला जा रहा रजul, है? रजul के बाद रजुल। तो आदमी के बारे मुब्तदा में। कौन हुआ? मुब्तदा मुब्तदा। रजूल हो गया। अर्राजुलु। हाँ, अर रजुल मुब्तदा हुआ। फिर ये फिल मस्जिद, ये मस्जिद। खबर है। इसको खबर कैसे हम बनाएंगे? फी हरफे जार अल मस्जिद मजरूर। मजरूर। मजरूर है जार तो दोनों मजरूर मिलकर मिलकर के
खबर खबर बन जाता है। खबर हुई। जी और इसका जब हम तर्जमा करेंगे तो यूं करेंगे जैसे तालिब इल्म जामिया में है, आदमी मस्जिद में। आदमी मस्जिद में है। मस्जिद में है। है। ये जो अर्रजुल है ना मारिफा है, और तालिबु मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि मुब्तदा हमेशा मारिफा मारिफा होती है। होता है। मारिफा होता है। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है ना, मुब्तदा कभी नकेरा नहीं होगा। ठीक ये है। मुब्तदा इसमें रजूल है ना, अभी तो मुब्तदा और मारिफा रजूल है। जी, मुब्तदा और मारिफा रजूल है। अर्रजुल, जी अर्रजुल बोल रहे हैं ना आप ये? जी जी। हाँ, ये मुब्तदा है। हाँ, मुब्तदा में से मारिफा होगा जी। जी हाँ। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी यहाँ उस्ताद। पर क्या है, आइनत ताजिरो, ताजिर ताजिर कहाँ है? कहाँ है? है हुआ ना, फिर आइनत दुकान ताजिरो, है। ताजिर कहाँ है? तो ये इसको मुब्तदा खबर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सवालिया जुमला। क्या कहेंगे? कॉलेज। सवालिया सवाल सवालिया जुमला। जुमला। जुमला, इंटेरोगेटिव है ये। हाँ। जी चलिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को याद रखने वाली हैं। वो आप हमेशा पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने से याद हो जाएंगी, उनका कोई खास कायदा नहीं है। ये बगैर कायदे के हैं। इनका तो कायदा है, इनका कायदा नहीं है। जैसे ये मोहम्मदुन, तो ये हमेशा तनवीन के साथ पढ़ा जाएगा। और इस बॉक्स में जितने भी नाम हैं हमेशा तनवीन के साथ पढ़े जाएंगे। मोहम्मदुन, खालिदुन, इसको हम मोहम्मदो नहीं पढ़ सकते, बल्कि क्या पढ़ेंगे? मोहम्मदुन। तन्मदुन। तनवीन के साथ मोहम्मदुन, पढ़ेंगे। खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। ये इतने नाम आप लोगों को पढ़ते रहना है ताकि आपको पता चले कि इन नामों पे तनवीन पढ़ी जाएगी। यहाँ पर इसको हम अब्बासो नहीं कह सकते। अब्बासुन, अलीयुन, सईदुन, अम्मारुन, यासिरुन, हामिदुन, खालिदुन, है ना? जी तो इतने नाम चलिए, आप ये लोगों सब को मेल याद के रख। नाम है ना? हाँ, ये मेल के नाम है। शेख, और मेल के नाम में हमेशा तनवीन आएगी आखिरी वर्ड में। हाँ, कुछ नामों में आएगी, कुछ में नहीं आएगी, कल जैसे मैंने बताया था क्लास में। जी। तो अभी आप लोगों को इतने नाम याद रखने हैं कि इन नामों पे तनवीन आएगी। जैसे इब्राहिम है ना, अहमद है। हाँ, तो ये इब्राहिम। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तनवीन नहीं आती है, तो उनका ओके। अलग कायदा है। वो लेसन 20 में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है शेख। फिर क्या है, जैनबो, फातिमा तो, मरियमो, आयशा तो, खदीजा तो, सफिया तो, रुकैया तो। ये नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम तनवीन नहीं पढ़ सकते। तो इनका भी एक कायदा है, वो भी 20 लेसन में आएगा। लेसन 20 में उसको भी हम पढ़ेंगे कि इन नामों पे तनवीन क्यों नहीं आती है। ठीक है। अभी आप लोगों को इतना याद रखना है आसानी के लिए कि जो नाम फीमेल के हों उन पे तनवीन नहीं आएगी। जी। है ना, अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मुअन्नस के नाम हो, फीमेल के हो, उन पे तनवीन नहीं आएगी। नहीं है। हाँ। फिर यहाँ पर मश्क आप लोगों को दी गई है, यानी कि एक्सरसाइज दी गई है। इस पे आप लोगों को क्या करना है, इकरा वक्तुब मा ज़ब्ते अवाखिरिल कलिमात, आखिरी हर्फ पर एराब को जाहिर करते हुए पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, हामिदो के हामिदुन। हामिदुन, हामिदुन। हामिदुन। और यहाँ पर जैनबो के जैनब। जैनबुन, जैनब। जैनबो, है ना? जैनब। आमिनतु। जैनबो, अम्मार। सईद। अम्मारो, फातिमा। अम्मारो नहीं पढ़ेंगे, अब्बास। अम्मारू। अम्मारुन, अम्मारू। सईदुन, अम्मारू। है ना? मारून। फातिमा। मरियम। हाँ। अलीयुन। खालिदुन। अब्बास। चलिए, इसको अभी हम आयशा। रिकॉर्डिंग एंड करके फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज अपना लेसन यहीं तक होगा, और इसी को अब प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ।